द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, जो सबसे पहले हमें जानना चाहिए वो ये कि ऑल्टर टेबल जो है वो कौन सा कमांड है। इट्स द डीडीएल और डीएमएल कमांड। अभी तक हमने दो कैटेगरी के कमांड्स की बात की और हम दो ही कैटेगरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस दो कैटेगरी पे ही कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऑल्टर टेबल जो है इट्स अ डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ओके, ठीक है, तो ये हमारा डीडीएल कमांड है जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि we can change the definition of the existing table. What is the meaning of the change the definition of existing table? मतलब क्या है कि आपने अगर मान लीजिए कोई टेबल क्रिएट कर रखा है, कोई टेबल आपने बनाया हुआ है जिस टेबल्स के अंदर में मान लीजिए नेम कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर में एड्रेस कॉलम भी है, जिसके अंदर में मान लीजिए फी कॉलम है, एंड यू हैव इंसर्टेड सम रिकॉर्ड्स आल्सो, आपने कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिए। After some time you think that ki you have to maintain the one more column and that is called mobile column. After some time you are thinking that ki you want to maintain one more column and that column is known as the roll number column. But you want to add this roll number column at the first position. The mobile number column will be at the last column. Or before the fee you want to put the gender. Before the fee you want to put the gender. Means what? Ki I want to create a table. That table must contain roll number. The table must contain name. The table must contain address. The table must contain fee. The table must contain mobile number. And one more column, that is the gender. So table must contain this information also. और टेबल तो हमने पहले ही बना दिया, तो हाउ वी कैन डू दिस थिंग्स, हम कैसे करेंगे इस काम को। तो कहता है कि दिस वर्क यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टर टेबल कमांड। हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी ऑल्टर टेबल कमांड की, एंड दिस कमांड इज हेल्प अस इन एडिंग ऑफ द न्यू कॉलम्स। इट्स गिव अस द फैसिलिटी कि यू कैन ऐड द कॉलम एंड यू कैन डिलीट द कॉलम आल्सो। You can add the column and you can delete the column also. Means you are going to add, you are going to remove, as well as you are going to modify. You are going to modify and you are going to change. Normally alter table command is providing us four facility. You can do the four types of the job with the help of the alter table column. We can call the add command, we can call the drop command, we can call the modify, and we can call the change. So these are the four uses of the alter table. Alter table is provide the facility to add the column, as well as we can add the constant also. If we need to add the constants, हमें कोई constant लगाने की जरूरत होगी, जैसे primary key, foreign key, I will tell you about this also. Okay, तो how we can do this? We can do with the help of the alter table command. हम किसी कॉलम को रीडिफाइन कर सकते हैं, हम कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हैं, हम कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, हम कॉलम के साइज को चेंज कर सकते हैं, हम कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, हम डिफॉल्ट वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हैं. And these all things we can do with the help of the alter table command. Okay, now अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड द न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, तो वी हैव टू कॉल द ऐड क्लाउज विद द ऑल्टर टेबल कमांड. कैसे लिखते हैं? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द ऑल्टर टेबल, देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द टेबल, and then you start writing the add command, then you give the column name, then you give the data type, then you give the size. Okay, add, column name, data type, size, and if you want to put some constant, you want to apply the some condition, then you can write the constant name also here. Like this example you can find out here ki if inside the employee table I'm going to add the one new column and the name of the column is the telephone number. So what command is written here? You can see the command is written here, alter table employee, add telephone number and their data type integer. As I told you ki sometimes the data type is having their default data type size also. So in case of the integer, what is the default size in MySQL? This is the 11. So automatically it's become the 11 size here, 11 digit. Okay, so we can use the alter table for the adding the column also. Second thing, we can use the alter table to modify the column. What is the meaning of the modify? देखो, modify का दो काम होता है यहाँ पे. हम या तो हम डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, हम साइज चेंज करना चाहते हैं, या हम नाम चेंज करना चाहते हैं. अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस वी हैव अ चेंज क्लॉज.
हमारे पास एक चेंज क्लॉज है, बट वी हैव अ मॉडिफाई क्लॉज ऑल्सो। जो मॉडिफाई क्लॉज हमें फैसिलिटी देती है कि हम कॉलम के डाटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम के हम नए साइज को डिसाइड कर सकते हैं, हम उसके पोजीशंस को ऑल्टर कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि उसका पोजीशन इस कॉलम के पहले जाएगा या इस कॉलम के बाद जाएगा। फर्स्ट का मतलब हो गया एट द बिगिनिंग, फर्स्ट का मतलब हो गया बिगिनिंग, कि एकदम बिगिनिंग में उसको पहुंचा देना है, और आफ्टर का मतलब हो गया कि आफ्टर द गिवन कॉलम नेम, after the given column name. So that is the use of this clause first and after. Okay. Now for example suppose करो कि यहां देखो जैसे alter table कमांड लगाया गया, ये मॉडिफाई करना चाह रहा है, what do you want to modify? It's going to change the job. जॉब का क्या चेंज किया इसने? डेटा टाइप एंड साइज। जॉब का नाम चेंज नहीं हुआ होगा, यहाँ पे सिर्फ जॉब का डेटा टाइप एंड साइज चेंज होगा। तो दैट इज द यूज ऑफ द alter table कमांड विद द मॉडिफाई क्लॉज। अगर मॉडिफाई क्लॉज के बाद हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था देयर इज अ वन मोर कॉलम एंड दैट देयर इज अ वन मोर क्लॉज एंड दैट इज नोन एज द चेंज। सो चेंज नेम, इफ यू वांट टू चेंज देन वी हैव टू यूज द चेंज क्लॉज। इफ यू वांट टू चेंज द नेम, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करना है, अगर सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करना है तो वी हैव टू यूज द चेंज क्लॉज। लेकिन अगर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, अगर कॉलम का साइज चेंज, डेटा टाइप साइज चेंज करना है, उसके डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करने हैं, उसके नॉट नल कॉन्स्टेंट्स चेंज करने हैं, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द मॉडिफाई क्लॉज। उसके लिए हमें मॉडिफाई क्लॉज की जरूरत होती है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ऑल्टर टेबल चेंज क्लॉज के साथ भी यू कैन प्रोवाइड द न्यू डेफिनेशन फॉर दैट कॉलम। मीन्स यू कैन चेंज द डेटा टाइप ऑल्सो, you can change the size also, you can change the data type also, you can change the size also with the help of the change clause also, but actually in actually if you see, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये change clause जो होता है वो कॉलम के नाम को चेंज करने के काम में आता है। कैसे यूज करते हैं? alter table, यहाँ पे टेबल का नाम आएगा, a table name is required here after the alter table command, then you have to write down the change column, change, only change, don't write the column here, okay, change, and then you write the old column name, पुराना नाम बताइए उस कॉलम का। नाउ डिसाइड द न्यू कॉलम नेम, और फिर आप कॉलम के डेफिनेशंस को बता सकते हैं। डेफिनेशंस का मतलब हो गया यहाँ पे डेटा टाइप और साइज, आप ये बता सकते हैं इसका। और इस तरह से आप क्या कर पाएंगे? आप कॉलम को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि आई एम कॉलिंग द चेंज क्लॉज ऑल्टर टेबल कस्टमर्स एंड द फर्स्ट नेम इज गोइंग टू चेंज। फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम पहले ऐसे लिखा हुआ था अंडरस्कोर के साथ, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, उस फर्स्ट नेम को हम चेंज करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम में यहाँ पे अंडरस्कोर आपको दिख जा रहा होगा। उस फर्स्ट नेम के नाम के नीचे जो अंडरस्कोर है उस अंडरस्कोर को हमने खत्म कर दिया और कंप्लीट फर्स्ट नेम लिख दिया। कंप्लीट हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके डेटा साइज सॉरी नाम को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी डेटा टाइप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा चीज मैं भी आपको एग्जांपल से बताऊंगा, अभी तुरंत दिखा रहा हूं कि कैसे हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। द लास्ट क्लॉज विच इज यूज्ड विद द ऑल्टर टेबल कमांड एंड दैट इज कॉल्ड डिलीटिंग कॉलम्स। That is called deleting columns, कि you can delete the column also with the help of the alter table command। अगर आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के लिए we have to use the drop clause, और यहाँ पे भी टेबल नेम आएगा, ध्यान रखिएगा, alter table टेबल नेम, alter table के साथ क्या आएगा? टेबल नेम आएगा, and then you have to use the drop clause and then you have to provide the name of the column। जिस कॉलम का भी आप नाम बताओगे वो कॉलम आपके टेबल से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहां से। और ध्यान रखिएगा कि अगर ये किसी कॉलम को डिलीट करता है तो उसके साथ उसकी एंट्री को भी डिलीट कर देगा। ओके, तो नाउ वी गेट इट कि हमें 4 तरह के कमांड यूज करने हैं ऑल्टर टेबल के साथ। एक ऑल्टर टेबल ड्रॉप, एक ऑल्टर टेबल के साथ हमारा सबसे पहले ऐड की बात आती है, फिर ऑल्टर टेबल के साथ हम चेंज यूज कर रहे हैं, मॉडिफाई यूज कर रहे हैं, और एट लास्ट हम ड्रॉप को भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए इन सभी कमांड्स को हम वन बाय वन यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द कमांड समथिंग। फर्स्ट आई हैव टू, व्हिच कमांड आई हैव टू गिव? आई हैव टू यूज द use command। First I'm going to use the command, and we are working with the temp table database, so I'm just using the temp database here। So now I have given the command use temp, you can see it here, and it's giving the message database change। Okay, after that what I'm going to show you the tables, show tables, how many tables are there।
So just look at the tables. Okay, so I'm just checking the tables, which tables are available here. So with the help of the show tables command, I can check which tables are available, which tables are not available. There are Delhi employee and temp table is there. Okay, now I'm going to write the one command, select a star from Delhi. Okay, and I'm going to check which options. Yeah, this much columns are available. Now I'm going to write here, select a star from temp, and you will see that no column, no records are there. I'm going to show the structure of the temp table. So this is there are only three columns are there: e code, name, and salary. Now suppose I want to add the designation column in this. So first I'm going to add the designation column. So what the command I'm going to write here? I'm going to write here alter table command. Which command I'm writing here? I'm writing here alter table command. So please be careful. So now look at this. I'm writing here alter table. Okay, alter table, and now I'm giving the table name. So what is the name of the table? My table name is the temp. My table name is the temp. Okay, and I'm going to add the one more column. So what command I'm using? I'm using the add clause here. After the add, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? Designation या job, कुछ भी लिख देता हूँ, job. ठीक है, और एक कॉलम जॉब को ऐड कर रहे हैं और इसका डेटा टाइप मैंने दे दिया यहाँ पे 20, और इसके साथ अगर आप कोई कॉन्स्टेंट्स लगाना चाहते हैं, जैसे कि नॉट नल तो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, मान लीजिए यूनिक लगाना चाहते हो या कुछ, चलो रहने दो, कुछ भी, नथिंग, नो नीड टू ऐड एनीथिंग, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा. एंड नाउ यू कैन सी, अब आपको मैं इस कॉलम टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता हूं. तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जॉब नाम का एक कॉलम ऐड हो गया, जॉब नाम का एक कॉलम ऐड हो गया. ओके, अब अगर मान लीजिए कि मैं किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, या मान लीजिए एक नया कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं वो कॉलम सबसे बिगिनिंग में आ जाए, सबसे बिगिनिंग में आ जाए वो कॉलम, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आई हैव टू गिव द कमांड ऑल्टर टेबल. तो देखिए मुझे ऑल्टर टेबल कमांड यूज करना है. हाउ यू आर यूजिंग ऑल्टर टेबल, and then provide the name of the table here. So I am giving the name of the table temp here. add के बाद मान लीजिए मैंने कॉलम का नाम id दिया, डेटा टाइप मैंने इंटीजर दिया, साइज 3 दे देता हूं यहाँ पे, और इसको मैं लगा देता हूं फर्स्ट. इसके साथ मैंने क्या लिखा? फर्स्ट. तो फर्स्ट का क्या मतलब हो गया कि टेबल में कॉलम ऐड होगा, और वो जो कॉलम होगा उस कॉलम का नाम क्या है? आईडी, और उस कॉलम का पोजीशन क्या होगा? दिस वन इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर टेबल. अभी आपको मैंने दिखाया था एक अल्टर टेबल कमांड, अगर आप ध्यान दिया होगा आपने, तो यू कैन जस्ट सी इट नाउ अगेन. सो मैंने एक कॉलम ऐड किया यहाँ पे, जॉब कैट 20. जॉब कैट 20 जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लिखा, आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ इस टेबल में 3 कॉलम दिख रहे थे. ये जॉब नाम का कॉलम ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में ऐड होके आ गया. लेकिन जब मैंने ये कमांड दिया, ऐड आईडी इंट फर्स्ट, कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है. और अब अगर मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, तो यू कैन सी दैट कि आपको क्या देखने को मिल रहा है. नाउ आई एम राइटिंग हियर डीएससी, और मैंने यहाँ पे टेम्प लिखा, एंटर की दबाया, तो यू कैन ऑब्जर्व, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप देखो ये आईडी कॉलम इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर टेबल. आईडी कॉलम इज द योर फर्स्ट कॉलम ऑफ योर टेबल. ये आपके कॉलम, आपके टेबल का पहला कॉलम बन गया. क्यों बना? बिकॉज आई हैव यूज्ड द फर्स्ट क्लॉज हियर. मैंने फर्स्ट लगा के ही बताया था कि इस कॉलम को सबसे पहला कॉलम बनाओ मेरे टेबल का, एंड दैट्स व्हाई इट्स प्लेस दिस कॉलम एट द फर्स्ट पोजीशन. अब अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टू ऐड द वन मोर कॉलम, ऑल्टर टेबल temp, and I'm going to write here add, and this time I'm going to write here address. Okay, and address column, and the data type is the varchar. I'm giving the data type is the varchar, and this is the 30 size here, and this I'm writing here before. I'm writing here before. Okay, and before what? Before salary. I want this column before the salary. I want this column before the salary, and default I'm writing here default. Default I'm going to write here Delhi. Okay, and semicolon. There is a problem with the default. I can't use the default here. It is used with the, I think, this thing I have to place. 8 minutes, just wait. See, I'm trying to provide the this thing I have to put here. I think default Delhi means I want to give the default value to this. There is a problem. We can't use the default right syntax to use near before. Okay,
So I'm going to remove the default from here. I think it's not working. Or is there a problem with the before? I don't think so. There is a problem. Address varchar 20 before first after. Okay, sorry. That is correct. Before is no clause is here. So that is the problem is this. Now I'm writing here Delhi and I have to use after name. I have to use after name. That's why I'm getting the error message. Now it's working fine. Very good. So actually the problem is that I'm using the before clause and there is no clause that is used with the alter table by this name. So we have to use either first or after, either first or after. So what command I have given and what is the use of this command? You can see this. Okay, after giving this command, what happened? It's going to add the one column, okay, which name is the address with data type varchar, size 30, with default value Delhi, and this column is placed just after the name column. As you see here, whenever I am adding the ID column, I was added the ID column, the default value of ID column is the null. The default value of ID column is the null. आप देख सकते हो ध्यान से कि इसका default value क्या मिला था? null मिला था. जब मैंने जॉब कॉलम को ऐड किया था तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिला था? नल मिला था. लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? दिल्ली रहेगा. अब इस डिफॉल्ट का मतलब क्या है ये मैं फर्दर आपको बताऊंगा. अभी क्योंकि मैं अल्टर टेबल कर रहा हूं इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या यूज कैसे करते हैं यूज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टेबल और डिफॉल्ट का मतलब इन बिटवीन में बता ही देता हूं कि क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे और आपने एड्रेस कॉलम की वैल्यू नहीं प्रोवाइड की, मान लीजिए आपने सिर्फ बाकी कॉलम की वैल्यू दे दी, एड्रेस की वैल्यू नहीं दी, तो क्या देखने को मिलेगा कि बाकी सभी में तो नल वैल्यू आ गया. जैसे जैसे चलो मैं इंसर्ट करता हूं. मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टेम्प और यहाँ पे वैल्यूज आते हैं और मैंने यहाँ पे टेम्प में सिर्फ ई कोड डाल दिया और नेम डाल दिया. मैंने ई कोड और नेम डाल दिया. ई कोड मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है बिकॉज इट इज अ प्राइमरी की. ठीक है, और यहाँ वैल्यूज के अंदर मैंने सिर्फ वैल्यू डाल दिया 101. मैं एक नंबर डाल देता हूँ 101 कॉमा और नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया परवीन. ओके, तो या प्रदीप मैंने लिख दिया. ठीक है, मैंने एक नेम लिख दिया प्रदीप. और अब देखो मैंने सिर्फ दो वैल्यू यहाँ प्रोवाइड की. अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कमांड चला रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प. और आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पहले एक चीज को देख लो, आईडी के आगे क्या लिखा हुआ है? नल वैल्यू अलाउड है. डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है. इसके नीचे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? नल अलाउड नहीं है. ठीक है, इसके नीचे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है. लेकिन इस वाले कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? दिल्ली. यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है. यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है. ठीक है, तो अब जब मैं इस कमांड को रन कर रहा हूं तो आप जरा ध्यान से देखिए, आईडी को नल मिल गया. ई कोड तो आपने बता दिया था कि ई कोड और नेम को तो आप वैल्यू दे ही रहे थे 101 और प्रदीप, तो यहाँ पे 101 और प्रदीप आ गया. एड्रेस के लिए आपने यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं किया था क्योंकि एड्रेस कॉलम आपने बताया नहीं कि आप एड्रेस कॉलम को वैल्यू दोगे. बट व्हाट हैपेंड हियर? The address column is also getting a one value, and what is this value? This is the Delhi value. So that's I want to say you. यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि जब आप डिफॉल्ट के साथ सेटिंग करते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू की सेटिंग होती है और ऑटोमेटिकली जब रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे और वहां पे आप बताओगे कि इस कॉलम को वैल्यू नहीं देना है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ काम कर जाएगा. सैलरी को भी नल दे दिया, जॉब को भी नल दे दिया क्योंकि इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? नल थी. ओके, तो नाउ यू गॉट इट कि हाउ यू कैन यूज द ऑल्टर टेबल कमांड विद द ऐड क्लॉज. हम ऐड क्लॉज के साथ ऑल्टर टेबल कैसे यूज करते हैं, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी. और कॉलम का पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं फर्स्ट यूज करके और आफ्टर यूज करके, दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडिफाई क्लॉज कि हाउ वी कैन मॉडिफाई. अब मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है जिसमें आप देख पा रहे हो कि आईडी इंटीजर टाइप का है. मैं ये आईडी को कैरेक्टर टाइप का करना चाहता हूं. तो व्हाट आई विल राइट, मैं यहां पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल टेम्प और यहां पे मैं एक क्लाउज यूज करूंगा मॉडिफाई. कॉलम का नाम दूंगा आईडी. डेटा टाइप मैंने कर दिया कैर. साइज कर दिया 5. ओके, और अगर कुछ और वैल्यू आपको यहाँ पे सेट करना है, नो नल और समथिंग लाइक दिस, नॉट नल, समथिंग लाइक दिस, तो देखते हैं लिख के क्या पॉसिबल है कि नहीं. तो ट्रंकेटेड फॉर डेटा, ट्रंकेटेड फॉर कॉलम आईडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी नल वैल्यू दिया हुआ है तो नॉट नल हम
नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इतना करके एंटर की दबा देते हैं। एंड नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर मैसेज एंड नाउ आई एम पुटिंग द कमांड DSC और यहाँ पे मैं टेम्प कॉलम को दिखा रहा हूँ आपको एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट कि व्हाट हैपन, यहाँ पे कैर क्या मिला हुआ है इसको 5। कैर की वैल्यू क्या हो गई, डेटा आईडी की डाटा टाइप क्या हो गया, कैर 5। क्यों, क्योंकि आपने कह दिया कि इसको कैर 5 बना दो और ठीक इससे पहले इसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज द इंटीजर 3। यू कैन सी कि इससे पहले ये इंटीजर था, लेकिन अभी अब ये क्या हो रहा है, दिस इज नाउ कैर। तो अब ये कैरेक्टर डेटा टाइप हो चुका है। ओके, so is there any doubt, you can ask if you have. Okay, now you understands कि how can use the modify clause. modify clause के साथ अगर मान लीजिए कि डेटा टाइप मैंने बता ही दिया, साइज बता ही दिया और हम कॉन्स्टेंट्स भी कुछ लिख देते हैं, जैसे नॉट-नल कॉन्स्टेंट्स तो हम यूज कर ही सकते हैं यहाँ पे। चलो अब हम चेंज क्लॉज को यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल, और किसी का कॉलम का पोजीशन भी चाहो तो मॉडिफाई के साथ आप यूज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ऑल्टर टेबल, ठीक है, मॉडिफाई, कॉलम का नाम आईडी दिया, डेटा टाइप मैंने कैर 5 दिया और इसके पोजीशंस को मैंने कर दिया आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी मैं चाहता हूं कि ये कॉलम आ जाए, सिंटैक्स टू यूज नियर आफ्टर सेल, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, ये चेंज करने के लिए नहीं दे रहा है, आई थिंक आई हैव टू यूज विद द चेंज क्लॉज। तो लेट्स सी, मैं एक बार चेंज को यूज करके देखता हूं। पहले मैं चेंज के साथ नाम चेंज करना चाहूंगा, आईडी का नया नाम मैं करना चाहता हूं EID, ओके, और डेटा टाइप मैंने दे दिया कैर 5 और अब मैं देखना चाहता हूं कि आफ्टर सेल कैन आई राइट दिस और नॉट। It's asking there is a problem, change clause cannot allow to do change the position। चलो हटा दो इसको, कोई बात नहीं, don't take burden of this, just oh, a big mistake is doing by me, I am not mentioning the call table name। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमने यही कर दिया था, सारी बातें अपनी जगह पे थी और हम क्या कर रहे थे, मॉडिफाई लिखा था हमने और सबसे पहले हमने यही कमांड लिखा था, हमने टेबल का नाम ही नहीं दिया था, तो एरर तो अपने आप आना था। कमांड सही देने के बावजूद भी वी आर गेटिंग द एरर मैसेज ड्यू टू नॉट पुटिंग द नेम ऑफ द टेबल। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैनुअल इसने क्या दिया था, चेंज आईडी, ठीक है, और यहाँ भी मॉडिफाई के साथ ये एरर मैसेज दिखा रहा था हमें, बट वी आर नॉट रीडिंग द मैसेज, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दिस, नो प्रॉब्लम। तो चलो अब देखते हैं, जरा सा इस कॉलम को चेक करते हैं कि क्या क्या काम हुआ। मैंने मॉडिफाई किया था, सैलरी के बाद इसके पोजीशन को रिलोकेट किया, तो नाउ डिस्क्राइब टेम्प को देखते हैं और अब देखो आपका आईडी जो है वो सेल के बाद आ गया। फर्दर यू अंडरस्टैंड्स कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि आप मॉडिफाई क्लॉज कैसे यूज करोगे। ऑल्टर टेबल में आपने ऐड देख लिया, मॉडिफाई देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द ऑल्टर टेबल कमांड एंड अगेन आई एम गोइंग टू पुट ऑल्टर टेबल, ओके, एंड टेम्प, एंड वी आर गोइंग टू यूज द चेंज कॉलम। चेंज, अब मैं कॉलम का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं आईडी का नाम EID करना चाहता हूँ। मैं इतना अगर लिखूंगा तो मुझे एरर मैसेज मिलेगा, क्योंकि ये कहता है कि आपको कॉलम डेफिनेशन भी बतानी है। आप चाहे तो डेटा टाइप चेंज कर दीजिए, चाहे तो साइज चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और आप चाहे तो मत चेंज कीजिए, ये आपकी मर्जी है, बट ये कहता है कि आपको यहाँ पे लिखना है और जब आप लिख रहे होते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इसका नाम, कॉलम का नाम EID हो गया और डेटा टाइप भी इसका चेंज हो गया, डेटा टाइप तो कैरी है, साइज चेंज हो गया। मैं इसके एंटायर डेटा टाइप को भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने EID से, मान लो इसका नाम अब EID कर देता हूँ, EID से मैं इसको वापस ID करना चाहता हूँ और डेटा टाइप में कैर से इंट करना चाहता हूँ, तो मैं इंट भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, नाउ कमांड इज वर्किंग, इट्स ऑलरेडी वर्क। अब अगर मैं डिस्क्राइब कमांड को यूज करता हूँ तो ये देख सकते हो कि आईडी का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर के साथ आ गया। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड्स कि हाउ कैन यूज द ऑल्टर टेबल ऐड समझ में आ गया, मॉडिफाई समझ में आ गया, एंड दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रॉप। ड्रॉप कॉलम का मतलब क्या है, हम किसी भी कॉलम को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने ये एक बार अगर आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो कॉलम दोबारा नहीं आएगा, और जब भी हम किसी कॉलम को ड्रॉप करेंगे उसके साथ उसका डेटा भी डिलीट हो जाता है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TMP मैं करता हूं तो आप देख सकते हो कि इसमें इतने सारे कॉलम अवेलेबल हैं, कुछ डेटा भी अवेलेबल है। मान लीजिए मैं एड्रेस कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ऑल्टर टेबल टेम्प और यहाँ पे ड्रॉप, और ड्रॉप के आगे क्या लगा दिया मैंने, एड्रेस।
तो ड्रॉप के आगे क्या लगा दिया, एड्रेस, एंड नाउ यू कैन सी, सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टार दिखाना चाहूंगा। देखिए नेम के आगे एड्रेस नाम का कॉलम खत्म हो चुका है। और अगर मैं इस टेबल के स्ट्रक्चर को दिखाना चाहूंगा DESC, तो आपको यहाँ पे DSC टेम्प करना चाहूंगा, तो देखो ये टेबल, ये कॉलम यहाँ पे एड्रेस नाम का कॉलम यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप करना चाहते हैं एक ही कमांड से, मान लीजिए एड्रेस के बाद मैं सेल भी लिखना चाहता हूँ, ID भी लिखना चाहता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, यू कांट, सेल है ना, सेल है, एड्रेस नहीं है, सॉरी, एड्रेस कॉलम इज नॉट देयर, सो ड्रॉप सेल एंड ID, मैंने दो कॉलम का नाम लिखा, तो देयर इज अगेन वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आप एक से अधिक कॉलम को हम एक बार में ड्रॉप आउट नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अल्टर टेबल सेल लिखेंगे, हमें ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा हमारा, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स आप सिंगल कमांड से ड्रॉप नहीं कर पाइएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आई एम ट्राइंग बट आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज। तो दैट्स व्हाई इट्स अ कंक्लूड कि वी कांट डिलीट मल्टीपल कॉलम्स विद अ वन कमांड। हाँ, लेकिन मल्टीपल कॉलम मैं ऐड जरूर कर सकता हूँ। लेट आई सी यू, लेट आई शो यू कि कैसे करते हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल्टर टेबल टेम्प, यहाँ पे मैंने लिखा ऐड कॉल 1, डेटा टाइप दे देता हूँ इंट, ठीक है, कॉमा कॉल 2, और डेटा टाइप दे देता हूँ कैर 5। देखते हैं ये ऐड होता है या नहीं होता है। इट्स स्टिल वी आर गेटिंग एरर मैसेज। तो यहाँ भी हमें एरर मिल रहा है कि मतलब हम मल्टीपल कॉलम्स यहाँ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, एक ही कॉलम हमें एक बार में एक ही कॉलम को ऐड करना होता है। चलिए, ओके, तो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस कि हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं। तो हमारा ऑल्टर टेबल के सारे सिंटेक्स मैंने आपको बता दिए। तो नाउ यू गॉट इट। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरी इफ यू हैव, यू प्लीज आस्क। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ऑल्टर टेबल कमांड, और ऑल्टर टेबल कमांड्स के साथ हमने क्या क्या क्लॉज यूज किया। हमने ऐड क्लॉज यूज किया, ठीक है। हमने मॉडिफाई क्लॉज यूज किया यहाँ पे, ठीक है। हमने ऑल्टर टेबल के साथ एक क्लॉज और यूज किया जिसका नाम है चेंज, और एक क्लॉज हमने और यूज किया जिसका नाम है ड्रॉप। ड्रॉप कॉलम को रिमूव करने के लिए, चेंज नाम को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई कॉलम के डेटा टाइप और साइज को मॉडिफाई करने के लिए या उसके कॉन्स्टेंट्स को, ऐड कॉलम को ऐड करने के लिए या कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स ऐड करने का मतलब मैं एक चीज और दिखा दूं कि कॉन्स्टेंट्स हम ऐड क्लॉज से कैसे ऐड करते हैं। एट लास्ट मैं चाहता हूं कि वो भी दिखा दूं आपको कि अगर कोई कॉन्स्टेंट्स ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉलम ऐड किया ऑल्टर टेबल टेम्प, और यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ, सपोज करो सिक्योरिटी कोड, ठीक है, और डेटा टाइप में देता हूँ कैर, साइज दे देता हूँ यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ यूनिक। तो इससे क्या हो गया, यूनिक कांट राइट, what is the problem today? I'm getting too much problem. There is a problem with this unique. It's not allowed to add the unique like this way. अच्छा, ऐसे नहीं, add unique, ठीक है, यूनिक, और यहाँ पे कॉलम का नाम मैं देता हूँ जॉब, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्स्टेंट्स ऐड करते हैं। सॉरी, प्रोसेस गलत था। हमें क्या करना था, ऐड के बाद हम कॉन्स्टेंट्स का नाम देते हैं, और कॉन्स्टेंट्स के नाम के बाद हम कॉलम का नाम बताते हैं। तो उस कॉलम पे यूनिक कॉन्स्टेंट्स लग जाता है। लगने से कैसे पता चलेगा कि यूनिक कॉन्स्टेंट्स लगा या नहीं लगा, तो लेट आई शो यू। तो जरा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ गया UNI जॉब के आगे। इसका मतलब क्या है, ये यूनिक हो गया। इससे पहले यहाँ पे कोई UNI वर्ड नहीं आ रहा था, बट नाउ यू कैन सी it's automatically giving the UNI here. So this way you can add the constants also. Okay, next we are going to talk about the how to remove the tables. हम टेबल या डेटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई टेबल डिलीट करना है, किसी डेटाबेस को डिलीट करना है, तो हम इस काम को कैसे करेंगे। तो टेबल को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक कमांड है ड्रॉप टेबल, और डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। ड्रॉप टेबल के साथ एक क्लॉज यूज होता है इफ एग्जिस्ट, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें लगता है, हमारे पास कोई डाउट्स होते हैं कि इस नाम का टेबल नहीं भी हो सकता है, और वी विल गेट एन एरर मैसेज। तो हम एरर मैसेज नहीं चाहते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, हम इफ एग्जिस्ट लगा देते हैं। अगर वो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो डिलीट कर दो, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कुछ मत करो। ओके, तो नाउ आई एम गिविंग द कमांड। सबसे पहले फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द नेम ऑफ द टेबल्स। मैं आपको टेबल्स का नाम दिखा देता हूं। ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग हियर शो टेबल्स। ओके, शो टेबल्स, एंड हमारे पास कई सारे टेबल्स हैं। तो सपोज मैं दिल्ली वाले टेम्प वाले टेबल को डिलीट करना चाहता हूं, तो आई एम राइटिंग हियर
ड्रॉप टेबल टेम्प, ड्रॉप टेबल टेम्प, और देखिए ये टेबल डिलीट हो गया। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे यही कमांड चलाऊंगा ड्रॉप टेबल टेम्प, तो आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज, अननोन टेबल टेम्प, अननोन टेबल टेम्प। क्यों? क्योंकि टेम्प नाम के टेबल को आपने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। आपको कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे शो टेबल कमांड फिर से यूज करता हूँ, शो टेबल्स, ठीक है। तो देखो वो टेबल्स आपके सामने नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे फिर से लगाता हूँ यही कमांड ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ एग्जिस्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प, एंड नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेम्प। तब आप देख सकते हो कि दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग द एनी एरर मैसेज। हमें पता है कि दिस टेबल इज नॉट एग्जिस्टिंग, this table is not existing, but still I'm not getting any error message, and this is due to this if exist command. This is due to this if exist command. Okay, यहीं पे एक ड्रॉप डेटाबेस भी कमांड है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि कैसे डेटाबेस को डिलीट करते हैं। या चलो मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूं, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू क्रिएट डेटाबेस ABC AC, and now I'm writing the command, I'm showing you databases here, show databases, तो देखो यहाँ पे AC नाम का डेटाबेस बन चुका है, और इस डेटाबेस को अगर डिलीट करना हो तो मैं लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस AC एंड एंटर की, और देखो वो डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं शो डेटाबेस कर रहा हूं तो यहाँ पे AC नाम का कोई डेटाबेस हमें नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस के साथ भी हमारे पास एक कमांड आता है इफ एग्जिस्ट, हम यहाँ भी यूज करते हैं इफ एग्जिस्ट AC। तो आई एग्जिट्स I think it's not allowing with the database, ठीक है। Drop database, actually I'm using the create database, so I have to use the drop database, sorry, by database के साथ drop database हमें use करना है, drop database if exists, okay। So this time we are not getting any error message. So now I'm going to end the class here now only, so I hope you all are understand this। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे।